اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 186 سے ہم آج کی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ وَإِذَا اور جب، سَأَلَ کا آپ سے پوچھیں، سَأَلَ پوچھیں، کا آپ سے، عبادی میرے بندے، عبد کی جمع ہے عباد اور چھوٹی یہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے میرے، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، یہ اب بریکٹ کے اندر آئے گا، آپ انہیں بتائیں، فَإِنِّي بے شک میں، قریب بالکل قریب ہوں، نزدیک ہوں، اجیبو میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی دعا کرنے والے کی دعا، اذا جب، دعان وہ مجھ سے مانگتا ہے، فَلْيَسْتَجِیبُوا پس انہیں چاہیے کہ میرے حکم مانے، فَلْيَسْتَجِیبُوا لی پس انہیں چاہیے کہ میرے حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بی اور مجھ پر ایمان لائیں، بی کا معنی بن رہا ہے مجھ پر، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ، یرشدون ہدایت پا جائیں۔ ترجمہ ایک بار پھر سن لیجئے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي اور جب پوچھیں آپ سے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندے میرے متعلق، فَإِنِّي قریب تو آپ انہیں بتائیے کہ میں ان کے بالکل نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا مانگتا ہے مجھ سے، فَلْيَسْتَجِیبُوا لی پس انہیں چاہیے کہ میرے حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بی اور ایمان لائیں مجھ پر، لَعَلَّهُمْ یرشدون تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اب ہم اس آیت مبارکہ کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن سے میں نے زانوِ تلمذ طے کیا، علم کی دولت حاصل کی، اور جو میرے مرشد کریم بھی ہیں، انہی کی تفسیر میرے سامنے ہوتی ہے ضیاء القرآن۔ اس کی پہلی جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 126 ہے، اور اس آیت کے تحت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو پیراگراف لکھ دیا ہے، اس کے اندر اس قدر چاشنی ہے، لذت ہے، اس قدر لطف ہے ان لفظوں کے اندر کہ میں سیم ٹو سیم وہی الفاظ آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں، کتنی پیاری آیت ہے، ہجوم بلا میں، طوفان مصائب میں، گرداب ہلاکت میں گھرے ہوئے شکستہ دل اور پریشان انسان کے لیے ان چند لفظوں میں اطمینان و سکون کا کیا روح پرور پیغام ہے۔ آپ غور فرمائیے، فَإِنِّي قریب کے دو لفظوں میں راحت و اطمینان کی ایک دنیا سمیٹ کر رکھ دی گئی ہے، کسی فصل بہار کی نسیم سحر میں، کسی ابر نیساں کے حیات بخش قطروں میں وہ اثر کہاں جو اثر ان دو لفظوں میں ہے، فَإِنِّي قریب بے شک میں بالکل قریب ہوں۔ دکھ درد کا مارا جب یہ سنتا ہے کہ میرا مالک میرا خالق مجھ سے الگ تھلگ کہیں دور نہیں کہ اسے میرے حال کا علم نہ ہو، رنج و علم کی خبر نہ ہو، بلکہ وہ قریب ہے، بالکل قریب، نزدیک ہے، رگ جاں سے بھی زیادہ نزدیک، تو اسے کتنا قرار آتا ہے۔ تمہاری زبان پر آئی ہوئی بات تو کیا، تمہارے دل میں منہ چھپائے ہوئے اسرار جو قوت گویائی کو اپنا چہرہ دکھانے سے شرماتے ہیں، افکار اور اندیشوں کے وہ نازک و لطیف آبگینے جو ہوائی صوتی لہروں کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، ان سب کو وہ جانتا ہے، وہ قادر بھی ہے، رحمان و رحیم بھی۔ تم دستے دعا دراز تو کرو، تم دامن طلب پھیلا کر تو دیکھو، تم دل کے ہاتھوں سے اس کے در رحمت پر دستک تو دو، وہ سنے گا تمہاری فریاد، وہ قبول کرے گا تمہاری دعا، وہ بدل دے گا تمہاری بگڑی ہوئی قسمت، لیکن جب وہ کرم فرمائے
तो सरकश न बन जाना। इसी तरह सरे न्याज उसके दरे अक़दस पर झुकाए रखना। इस्लाम कबूल करने पर जो जिम्मेदारियां तुमने कबूल की थीं, जो अहद तुमने बांधा था, उनको निभाते रहना। रुश्दो हिदायत पा जाओगे, कामयाबो कामरान हो जाओगे। ये जो अल्फाज हैं, फ़इन्नी करीब, बेशक मैं बिल्कुल करीब हूँ, ये मामला है असल में तालिब हक का। जब कोई हक का तालिब बनता है, जब कोई अल्लाह की मोहब्बत का मतवाला हो जाता है, जब कोई इश्क़ इलाही के अंदर सरमस्त हो जाता है, तो फिर वो बेसाख्ता सवाल पूछता है कि कहाँ है अल्लाह, है कहाँ? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ, उससे मुलाकात पाना चाहता हूँ। तो जब तालिबान हक, जब इश्क़ के मतवाले हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर रहमत पर आते, तो अल्लाह पाक ने अपने महबूब से फरमा दिया कि मेरे हबीब, जब आपसे लोग मेरा पता पूछें, मेरा घर पूछें, जब आपसे लोग मेरा डेरा पूछें कि मैं रहता कहाँ हूँ, रहता कहाँ हूँ, मैं बसता कहाँ हूँ, तो आप इनको बता दीजिए बेशक मैं करीब हूँ। क्यों अल्लाह पाक ने ये करीब लफ्ज़ क्यों फरमाया? ये इसलिए फरमाया कि अल्लाह ताला मकान से पाक है। अगर अल्लाह ताला का भी कोई ख़ास किस्म का एड्रेस हो, उसका कोई पता हो, उसकी कोई गली हो, वो कहीं रहता हो, तो फिर तो उसका एड्रेस बनता है। लेकिन अल्लाह ताला मकान से पाक है, वो किसी मकान में नहीं रहता। अगर हम अल्लाह ताला के लिए मकान मानेंगे तो फिर अल्लाह ताला के लिए हमें ज़मान भी मानना पड़ेगा। ज़मान, जब मकान मानेंगे तो फिर ज़मान भी मानना पड़ेगा। जबकि अल्लाह ताला मकान से भी पाक है, ज़मान से भी पाक है, जगह से भी पाक है, ज़माने से भी पाक है। वो किसी जगह के अंदर नहीं रहता, वो किसी मकान में नहीं रहता, वो किसी ज़माने के साथ नहीं है। ज़माने भी उससे हैं, जगह भी उससे हैं। वो इन जगहों से भी वरा है, वो इन ज़मानों से भी वरा है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं दूर तो तब हूं कि जब मेरा कोई मकान हो, फिर तो मैं दूर हूं। अगर आपके पास कोई शख्स आपके करीब किसी का मकान हो तो वो आपके करीब है, और जिसका मकान आपके मकान से दूर हो वो आपसे दूर है। लेकिन अल्लाह ताला तो मकान से ही पाक है। जब वो मकान से ही पाक है तो वो अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं दूर हूं ही नहीं, क्योंकि दूरी उसके लिए होती है जिसका कोई मकान हो। मैं तो करीब हूं, मैं तो तुम्हारी रगे जान से भी करीब हूं, शहरग से भी करीब हूं। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर ही एक मकाम पर फरमाया, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम अपने बंदों की शहरग से भी ज्यादा करीब हैं। किसी इंसान के करीब उसकी शहरग भी नहीं है, शहरग भी हमसे दूर है। हालांकि शहरग तो हमारे करीब है, शहरग है तो हम हैं, लेकिन वो रब अपने बारे में फरमाता है कि इतनी करीब तुम्हारे शहरग भी नहीं है जितना मैं तुम्हारे करीब हूं। तो इसी इन्नी करीब के अंदर आप एक और बात ये समझ लीजिए कि अल्लाह तो हमारे करीब है। अब देखें, अल्लाह हमारे करीब है लेकिन हम उससे करीब नहीं हैं। हम उसके करीब कब होंगे? हम उसके करीब उस वक़्त होंगे जब हम गफलत से निकलेंगे, लापरवाही से निकलेंगे, अदम तवज्जोही से हम बाहर आएंगे, क्योंकि हमारा अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं होता, अल्लाह की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। जब अल्लाह की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती, अल्लाह की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता, तो हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं, अल्लाह से दूर हो जाते हैं। अल्लाह हमारे करीब ही रहता है, हम अल्लाह से दूर होते हैं। तो ये बात आपने पल्ले बांध ली कि अल्लाह ताला हमारे करीब है। अब दूसरी बात सुनिएगा, इसी आयत मुबारका के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, उजीबु दावत दाई इज़ा दान, कि जब कोई मुझसे दुआ मांगता है तो मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूँ, मैं उसको मैं उसको जवाब देता हूँ। दावत दाई, पुकारने वाले की पुकार का मैं जवाब देता हूँ। इज़ा दान, जब वो मुझसे मांगता है। आम तौर पर हम इस जुमले को समझ नहीं पाते, इज़ा दान को। अब मैं थोड़ा सा इस इज़ा दान को वाज़े करना चाहता हूँ
यहाँ एक बिल्कुल बारीक सा फर्क है। इज़ा दआन का मतलब यह है जब वो मुझसे मांगता है, लेकिन सिर्फ तर्जुमा अगर हम ये कर देंगे कि जब वो मुझसे मांगता है तो पूरी तरह बात वाज़ेह नहीं होगी। अगर आप इस जुमले के अंदर छोटा सा एक लफ्ज़ ऐड कर दें तो देखें इसके अंदर क्या खूबसूरती आ जाएगी, क्या लज्जत आ जाएगी इसी जुमले के अंदर। इज़ा दआन, जब वो मुझ ही से मांगता है, जब वो मुझ ही से मांगता है। अब इसका क्या मतलब है कि जब वो मुझ ही से मांगता है, इस दिल से हर मोहब्बत जब तक निकलेगी नहीं उस वक़्त तक हम अल्लाह के करीब नहीं होंगे। ये अल्लाह पाक ने पहले फरमाया कि मैं करीब हूँ, साथ ही फरमा दिया कि तुम दूर हो, लेकिन वो रब्बुल आलमीन उसके कलाम के अंदर बला की नज़ाकत है। उस रब ने ये भी लफ्ज़ फरमाना मुनासिब नहीं समझा, गवारा नहीं किया, पसंद नहीं किया कि मैं बंदों को कहूँ कि ऐ मेरे बंदो तुम मुझसे दूर हो। ये बात फरमाने की बजाय अल्लाह पाक ने बात का अंदाज ये रखा है, तुम दूर हो नहीं कहा, बल्कि ये कहा है कि तुम भी मेरे करीब आ सकते हो। उसका तरीका बता दिया, उसका फार्मूला बता दिया कि तुम मेरी मोहब्बत को पाने के लिए दुनिया की हर मोहब्बत को दिल से निकाल दो, दुनिया की हर चीज को दिल से निकाल दो। अब जब हम दुनिया की हर चीज को अपने दिल से निकालेंगे तो फिर भी हो सकता है कि ख्वाहिशात, चीज़ों की ख्वाहिशात हमारे अंदर मौजूद रहें। तो अल्लाह ताला ये भी पसंद नहीं करता कि हमारे दिल के अंदर चीज़ों की ख्वाहिशें हों, तमन्नाएं फिर भी हों। यानी चीज़ों से तो हम दूर हो जाएं, दौलत से दूर हो जाएं, दुनिया से दूर हो जाएं, घर बार से दूर हो जाएं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि चीज़ों की ख्वाहिश हमारे अंदर मौजूद रहे। तो अल्लाह पाक चाहता यह है कि हमारे अंदर से चीज़ों की ख्वाहिशात भी रुखसत हो जाएं। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। हर तमन्ना दिल से रुखसत, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई। जब तक तमन्नाएं दिल के अंदर रहेंगी तब भी अल्लाह हमें नहीं मिलेगा, हम अल्लाह के करीब फिर भी नहीं आएंगे। यहाँ एक और चीज़ वाज़े कर दूं कि दुनिया के अंदर हमने रहना है, लेकिन दुनिया को अपने अंदर नहीं रखना। दुनिया के अंदर तो हम रहेंगे, अगर हम दुनिया से किनारा कशी कर लें तो अल्लाह ताला तो इसको भी पसंद नहीं करता कि तुम दुनिया से किनारा कशी कर लो, क्योंकि इस्लाम जो है वो रहबानियत का दर्स नहीं देता, जंगलों में निकल जाने का दर्स नहीं देता, दुनिया से कट जाने का दर्स नहीं देता। तो दुनिया में रहो लेकिन खुद को दुनिया से अलग कर लो। जैसा कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसकी मिसाल दी है कि आप दुनिया को यूं समझें कि दुनिया एक पानी है और तुम एक कश्ती हो। तो अगर पानी के ऊपर कश्ती चलती रहे तो कश्ती किनारे पर पहुंच जाती है, मंजिल पर पहुंच जाती है, लेकिन अगर पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो कश्ती डूब जाती है। इसी तरह हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया को अपने अंदर ना आने दो, दुनिया के ऊपर सवार रहो, दुनिया के अंदर रहो, लेकिन दुनिया को अपने अंदर ना आने दो, क्योंकि अगर दुनिया तुम्हारे अंदर आई तो जैसे पानी कश्ती के अंदर आने से कश्ती डूब जाती है, ऐसे ही दुनिया तुम्हारे अंदर आने से तुम डूब जाओगे, तुम अल्लाह से दूर हो जाओगे। तो अल्लाह के करीब आने का तरीका कार अल्लाह पाक ने बता दिया कि जब कोई बंदा सिर्फ मुझ ही से मांगता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ, मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। अच्छा, यहाँ एक और बात वाज़े कर दूं कि वो सुनता सब की है, कबूल किसी किसी की करता है। कबूल सिर्फ उसकी करता है जो सिर्फ अल्लाह ही का हो जाता है, अल्लाह से इतना ताल्लुक मजबूत कर लेता है कि दुनिया के किसी ताल्लुक को अल्लाह के ताल्लुक के ऊपर हावी नहीं होने देता। फिर फरमाया फल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी। ये भी अल्लाह पाक ने आगे दो इसके तरीके बता दिए। और पहला तरीका ये बता दिया कि सिर्फ मुझसे मांगो, दूसरा तरीका ये बता दिया कि तुम मेरा हुक्म मानो, और तीसरा तरीका ये बता दिया कि तुम कामिल तरीके से मेरे ऊपर ईमान लाओ। तो जब तुम कामिल तरीके से सिर्फ अल्लाह से मांगोगे,
कामिल तरीके से अल्लाह का हुक्म बजा लाओगे और कामिल तरीके से अल्लाह पर ईमान लाओगे तो अल्लाह तो तुम्हारे पहले ही करीब है। लेकिन अगर तुम इन 3 शर्तों को पूरा कर लोगे तो तुम भी अल्लाह के करीब आ जाओगे। लअल्लहुम यरशुदून, ये सारे जो तीनों तरीके अल्लाह पाक ने बताए ये इंसानों की हिदायत के लिए ही बताए, इंसानों की फलाह के लिए ही बताए। एक बात इसी आयत के अंदर और वाज़ेह कर दूं कि हम बसा औकात अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही। इस सवाल को भी ज़रूर इसका जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ। एक बात तो ये है कि जब हमारा रिज़्क हराम का होगा तो हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। जब हम लापरवाही से दुआ मांगेंगे तो हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। 2 बातें हो गई। और इसी के साथ एक चीज़ और ऐड कर लें, वो ये कि हो सकता है जो हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं अल्लाह ताला हमारे लिए उससे बेहतर का फैसला कर रहा हो। यानी हम कोई ऐसी चीज़ मांग रहे हैं कि जिसके अंदर हमारा नुकसान है, लेकिन हो सकता है कि अल्लाह ताला हमें कुछ ऐसा देना चाहता हो जो हमारे लिए नफ़ा बख्श हो। यानी हम कोई नुकसानदेह चीज़ अपने लिए मांग रहे हैं और हो सकता है कि अल्लाह ताला हमें कोई नफ़ा बख्श चीज़ देना चाहता हो, तो इसलिए हमारी वो दुआ कबूल ना हो रही हो। पहली वजह रिज़्क़ हराम, दूसरी वजह लापरवाही और तीसरी वजह ये कि हो सकता है हम नुकसानदेह चीज़ मांग रहे हों और अल्लाह ताला हमें कोई नफ़ा बख्श चीज़ अता करना चाहता हो। चौथी भी इसकी वजह एक हो सकती है, वो ये कि बसा औकात अल्लाह ताला को किसी का मांगना पसंद आ जाता है। जैसा कि इबलीस ने भी अल्लाह ताला से मांगा। इबलीस ने क्या मांगा अल्लाह ताला से? उसने मांगा कि अल्लाह ताला मुझे तो ये ताकत दे दे कि मैं तेरे बंदों को भटकाता रहूं। तो अल्लाह पाक ने उसी वक्त उसकी ये दुआ पूरी कर दी और फरमाया जा निकल जा, दफ़ा हो जा, तू लईन है और मैं तुझे ये ताकत देता हूँ कि तू मेरे बंदों को भटकाएगा, लेकिन जो मेरे बंदे होंगे उनके ऊपर तेरा बस नहीं चलेगा। तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को पूरा कर और उसी वक्त पूरा कर दिया, क्योंकि जो वो मांग रहा था वो उसके लिए उसके हाल के मुताबिक था। हाल उसका क्या था कि अल्लाह पाक ने उसे अपनी बारगाह से मरदूद बना दिया था, तो उसी वक्त उसे दे दिया। तो जब अल्लाह ताला किसी को मरदूद बनाता है तो उसको उसी वक्त दे देता है, लेकिन अल्लाह ताला जब किसी को अपना महबूब बना लेता है तो उसे फिर अपने दर पे मांगते रहने की तौफीक अता कर देता है, अपने दर पे बैठे रहने की तौफीक अता कर देता है। क्या ये अल्लाह ताला का कोई कम करम है? अल्लाह ताला का ये कोई थोड़ा एहसान है कि बंदा अल्लाह की दहलीज पे बैठा रहे और अल्लाह से मांगता रहे? कौन किसी को अपने दरवाजे पे बैठने देता है? कौन किसी को अपनी दहलीज पे बैठने देता है? तो क्या ये कम है कि उसने अपनी दहलीज पे बिठा रखा है, उसने अपने दरवाजे पे बिठा रखा है? तो अगर अल्लाह ताला से हम मांगते रहें और हमारी दुआ पूरी ना हो तो हमें फिर भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, फिर भी अल्लाह ताला से हमें दूर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि हो सकता है अल्लाह ताला को मेरा मांगना पसंद आ गया हो, जैसा कि इसकी मिसाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की है कि वो अल्लाह ताला से मांगते रहे और एक मुद्दत दराज मांगते रहे तो उनकी दुआ अल्लाह ताला ने बहुत देर के बाद कबूल फरमाई। उम्मीद है कि आपको आज की इस गुफ्तगू से बहुत कुछ हासिल हुआ होगा और आपके लिए ये गुफ्तगू बहुत मुफीद साबित होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी बारगाह से मांगते रहने की तौफीक अता फरमाए। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 186 आज मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा क्लास के अंदर हम आपके पास हाजिर होंगे आयत नंबर 187 के साथ। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।